Hello everyone. Today I will talk about how to maneuver through your UPSC Engineering Services personality test, how to control the direction of your interview, and believe me, you can control the entire interview. So let's begin. See, when you enter the room where the panel is sitting, obviously first the basic question would be introduce yourself, or they will look into your desk and simply mention, oh, so you are from this place, you work here. So what I had done, I had prepared a standard introduction of myself. The introduction that I had prepared was that I am Sakshi Mudliar. I had mentioned my name. I work as Assistant Garrison Engineer in Military Engineer Services. I am from Bhilai, Chhattisgarh, and I have done my schooling till class 12th from there itself. Then I did graduation in Civil Engineering from NIT Raipur. Before this, I was working in Chhattisgarh Public Health Engineering Department as Assistant Engineer. And I have written that introduction here for you. Now, in this introduction, you will see there are some keywords which I have highlighted with red. That is, if you see, number one is AGE, Military Engineer Services. Never, in your introduction, never ever mention short forms. उन्हें नहीं पता AWE क्या होता है, उन्हें नहीं पता AGE क्या होता है, और अगर पता भी है तो दिस इज नॉट अ वे टू इंट्रोड्यूस. कभी भी शॉर्ट फॉर्म में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता. ऑलवेज मेंशन द फुल टाइटल, असिस्टेंट गैरिसन इंजीनियर. इफ यू आर इन CPWD as assistant executive engineer. If you are working as AE, then assistant engineer. If you are a JE, then junior engineer, project manager. Whatever is your designation, that should be mentioned in full form, not in abbreviation. Next is, so number one highlight is your post. In my case, it was AG. Next is your organization. In my case, it was MES. The third highlight in my introduction was Bhilai, the place from which I belong to. Next was NIT Raipur, my college of graduation. And last one was Chhattisgarh Public Health Engineering Department, my previous job. Now, I prepared 3 to 4 branches of how the flow of interview will possibly go. You can see here, I had prepared the first branch here. Here I had written MES/AG. From this particular term itself, they can ask 2 to 3 questions. What they will ask? Number 1, the job profile. Number 2, about MES or IDSC, because I belong to IDSC cadre. Thirdly, why I have reappeared for this exam again. Now, when they would ask me about my job profile, I had also prepared a standard reply for that. That my job profile is planning, executing, construction of new infrastructure, maintenance of existing infrastructure. Now, again, when I give this reply, there are some keywords if you can focus. Number 1 is planning. So obviously, the next question could be, what are the studies done during planning stage? Okay, or what is the typical process of planning for any project work? Next highlighted word is execution of new construction project. So they may ask me, explain some new project that you have presently or currently in recent time executed or presently executing. I had prepared one project. और इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो आप एग्जीक्यूट कर रहे हो वही कुछ बताना है. आप उसमें अपने अकॉर्डिंग भी एक सिनेरियो फ्रेम कर सकते हो, लाइक आई डिड. सो व्हाट आई डिड वाज, उसमें मुझे हाईलाइट करना था बिकॉज आई हैड प्रिपेयर्ड वेरी वेल अबाउट द फाउंडेशंस. मुझे फाउंडेशंस के बारे में अपना नॉलेज बताना था कि हाँ, मैंने अच्छे से इसको डीपली स्टडी कर लिया है. तो मैंने बता दिया कि यस सर, देयर इज अ प्रोजेक्ट, उसका फाइनेंशियल इफेक्ट कुछ भी बता दो. नेक्स्ट, उसकी सॉइल कंडीशन, इट इज अ ब्लैक कॉटन सॉइल.
उसमें मॉन्ट मोरिलो नाइट बहुत ज्यादा है, बट इट इज आफ्टर अ सर्टेन डेप्थ। तो उसके लिए हमने ऐसी ऐसी पाइल डिजाइन की है, और उसमें एंड बियरिंग पाइल है क्योंकि नीचे में रॉक मिल रहा है। तो इस टाइप से यू कैन इवन क्रिएट सम सिनेरियो जो आपके एक्चुअल फील्ड कंडीशन में नहीं है, बट जस्ट टू टेक द कंट्रोल ऑफ द इंटरव्यू, और इंटरव्यू को उस डायरेक्शन में घुमाने के लिए, फाउंडेशन इंजीनियरिंग में ले जाने के लिए आप ये ऐसे केस सिनेरियो क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट, द थर्ड व्हाट आई सेड वाज मेंटेनेंस। तो ये 3 हाईलाइटेड वर्ड में दे कैन आस्क मी अबाउट प्लानिंग, प्रोजेक्ट के बारे में पूछ सकते हैं। जब मेरे से प्लानिंग के बारे में पूछते तो अगेन उसमें मैं जो स्टडीज बताती, फिजिबिलिटी स्टडी हो गया, एनवायरमेंटल स्टडी हो गया, इकोनॉमिक स्टडी हो गया, फाइनेंशियल स्टडी हो गया, उसमें भी आई वुड हैव स्ट्रेस्ड अबाउट समथिंग रिलेटेड टू सॉइल इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि मुझे ले जाके उनको सॉइल में ले जाना था, बिकॉज आई हैड प्रिपेयर्ड सॉइल इंजीनियरिंग इन डेप्थ। नेक्स्ट, अगर प्रोजेक्ट का बताते तो आई हैड प्रिपेयर्ड अ केस सिनेरियो कि सर ऐसी ऐसी सॉइल कंडीशन है, दैट्स वाई मैं उनको डीप फाउंडेशन पाइल में ले जाती, दैट आई हैड प्रिपेयर्ड वेरी नाइसली। नेक्स्ट, कमिंग टू थर्ड इज मेंटेनेंस। अगर मेंटेनेंस का क्वेश्चन आता, व्हाट कुड हैव दे आस्क्ड, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। अब होता यह है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो मेंटेनेंस के टाइप होते हैं मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए वो अलग होते हैं। दे आर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होते हैं, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, करेक्टिव मेंटेनेंस होते हैं, रूटीन मेंटेनेंस होते हैं, इमरजेंसी होते हैं। बट इन टर्म्स ऑफ MES इन कंस्ट्रक्शन ये चीजें वैसी नहीं होती। तो अगर ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था तो फर्स्ट आई रिप्लाइड अबाउट द स्टैंडर्ड रिप्लाई। स्टैंडर्ड रिप्लाई वही होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस जो मैकेनिकल वाले करते हैं। देन आई ऑल्सो एडेड सर बट इन MES according to MES terminology in department we have this kind of periodical services, welcome maintenance, this and that, routine maintenance, ये भी बताया। So what it shows is that you have the general knowledge also, and you have also worked very nicely in your present job, that's why you know about your department also कि department की terminology क्या है। So this was about the first case कि अगर MES या AGE से क्वेश्चन आता तो। नेक्स्ट कीवर्ड वाज भिलाई। भिलाई से क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नाउ भिलाई इज फेमस फॉर भिलाई स्टील प्लांट विच इज अ यूनिट ऑफ स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल। तो मैं उसके लिए भी प्रिपेयर्ड थी। उसमें क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हिस्ट्री कि कैसे बना, कौन से 5 ईयर प्लान से बना, एंड हु आर इट्स कंज्यूमर, एंड द वेरी क्रूशियल थिंग हियर वॉज कि जो BSP में जो रेल बनते हैं, द रेल सेक्शन इज प्रोवाइडेड टू इंडियन रेलवेज। मेजोरिटी ऑफ द इंडियन रेलवेज के रेल सेक्शन भिलाई स्टील प्लांट या सेल से आते हैं। तो और ऐसे कुछ सिग्निफिकेंट चीजें मैंने पढ़ के गई थी। नेक्स्ट वॉज अबाउट NIT रायपुर कि कौन सी ईयर में स्टैब्लिश हुआ, कौन से ईयर में NIT बना। नेक्स्ट वॉज रिगार्डिंग CG PhD। तो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी मैंने 1.5 ईयर्स काम किया एज असिस्टेंट इंजीनियर। तो इन द सेम वे जैसे मैंने MES के लिए प्रिपेयर किया, आई हैड प्रिपेयर्ड स्टैंडर्ड रिप्लाई फॉर माई जॉब प्रोफाइल इन छत्तीसगढ़ PhD। उसमें मैंने ज्यादा फोकस प्लानिंग में दिया अबाउट द डिजाइन ऑफ वाटर सिस्टम, क्योंकि वो मैं बहुत अच्छे से पढ़ के गई थी कि डिजाइन ऑफ वाटर सप्लाई सिस्टम कैसे होता है। तो मैंने एक पेक्यूलियर केस बना लिया था कि दिस वॉज द केस एंड इन दिस वे वी हैड डिजाइंड। आई वॉज ऑल्सो प्रिपेयर्ड अबाउट द सॉफ्टवेयर EPA-NET एंड वाटर नेटवर्क्स जो यूज होते हैं डिजाइन के लिए। सो दिस इज द वे कि आपको पहले एक स्टैंडर्ड अपना इंट्रोडक्शन तैयार कर लेना है, और इंट्रोडक्शन में अपने कीवर्ड्स जो है आइडेंटिफाई कर लेना है। उन पर्टिकुलर कीवर्ड्स के बेसिस पे यू हैव टू प्रिपेयर ब्रांच ऑफ क्वेश्चन कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड में कोई क्वेश्चन, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, व्हाट कैन बी माई रिप्लाई दैट वुड वर्क इन माई फेवर। आपने जिसकी तैयारी बहुत अच्छे से की है वो रिप्लाई में ऐसा एक स्टैंडर्ड वर्ड, एक हाईलाइटेड कीवर्ड होना चाहिए कि ऑटोमेटिकली पैनल वुड बी गेट अटेंशन टू दैट पर्टिकुलर वर्ड और उससे क्वेश्चन पूछे एंड यू आर एबल टू टेक थिंग्स इन योर हैंड।
So this was about maneuvering about through the UPSC personality test. I hope it helps. Thank you.